السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر دے کہ پاک فوج کا دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ کوئی فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو ہمیں یہ قبول نہیں۔ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ذاتی مفاد کے لیے عوام کے جان و مال سے کھیلے۔ فوج کو اپنی گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈا سے دور رکھے۔ 9 مئی کے کردار اپنے کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے پاس صرف 3 آپشن ہے۔ سہولت کار خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرے، ریاست کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرے۔ یہ دونوں کام نہیں کرنے تو بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا ان کے ساتھ بات کرے جو دن رات بھارت کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کوئی فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو ہمیں یہ قبول نہیں۔ فوج کو اپنی گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈا سے دور رکھے۔ 9 مئی کے کردار اپنے کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہیں، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ 9 مئی کے بارے میں ہمارا موقف بالکل ایبسولوٹلی پہلے دن سے واضح ہے کہ یہ افواج پاکستان کا نہیں، یہ قوم کا مقدمہ ہے، اور کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کے اندر ان واقعات کو کرنے والے، کروانے والے، اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو اس کے کیفر کردار تک، انجام تک نہیں پہنچایا جائے۔ کیونکہ جس ملک کے اندر آپ اس کی افواج، ان کی شہداء، ان کے مقامات کو آپ جلائیں، گھیراؤ کریں اینڈ دین یو کین واک اوے، تو وہاں پہ پھر جسٹس سسٹم جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان پڑ جاتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ دہشت گردوں کا سہولت کار کوئی بھی ہو، اب ایکشن ہوگا۔ کسی فرد واحد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ذاتی مفاد کے لیے عوام کی جان و مال سے کھیلے۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ افواج پاکستان یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا خیبر پختونخوا کے غیور عوام بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 2021 میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا۔ 2024 میں خیبر پختونخوا میں 14,500 سے زائد آپریشنز کیے گئے۔ رواں سال مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد 10 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ 2025 میں خیبر پختونخوا میں 516 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی۔ فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ حملے میں 7 سے زائد پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ 2 کی حالت تشویشناک۔ دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں دور دور تک سنی گئی۔ وقوع کی اطلاع پر ڈی پی او سجاد احمد صاحبزادہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ نیو شہراز احمد مغل سے۔ بتائیے گا شہراز، دہشت گردوں کے اس حملے کی کارروائی میں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ پولیس ٹریننگ سینٹر جو ہے مین بنو روڈ پر ہے واقعہ، اور اس کے ساتھ قریبی آبادی بھی ہے۔ اب تک جو ہے 7 پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں، جبکہ 4 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان، آر پی او ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے علاوہ
पाक फौज के जो जवान हैं, अफसरान हैं, वो भी क्लियरेंस ऑपरेशन में शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए शिराज। जत्थों की सियासत की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। जमहूरी एहतजाज सियासी और मजहबी हक है, लेकिन रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। TLP ने माजी में जत्थों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है पाकिस्तान के इमेज के साथ लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचा। सेफ सिटी कैमरे तोड़ दिए, पुलिस वालों को अगवा किया, केमिकल नमक किलो वाले डंडे इस्तेमाल किए गए। गजा वाले अमन होने पर खुशियां मना रहे हैं। TLP गजा वालों के लिए एहतजाज कर रही है। लाहौर में सियासी मकासद के लिए मस्जिद को इस्तेमाल किया गया। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जत्थों की सियासत और जत्थों से अपने मुतालबात मनवाना या अपने मकासद हासिल करने की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। लाहौर में इनके मरकज और अनफॉर्चुनेटली मस्जिद को सियासी दफ्तर बनाकर किलो वाले डंडे, केमिकल, शीशे की गोलियां, उसको एक गुलेल नमा चीजों से दागा जाता है पुलिस पे। आप पुरअमन है, ईंटें नहीं, तो फिर आपने सेफ सिटी के कैमरे क्यों तोड़े? पुलिस वर्दी में ड्यूटी करने वाले को सड़क से उठाकर लेके जाना ये सुन्नत नबी है, नौजुबिल्लाह। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों से मुलाकात की। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर दाखिला ने जवानों से मुसाहफ़ा किया, उनके जज्बे को सराहा और खाने पीने की फराहमी बारे पूछा। मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद पुलिस को हदायत दी कि ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हसास इदारों के ताउन से कराची में कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रा से ताल्लुक के शुबा में 2 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान NCCIA के मुताबिक मुलजिमान मुल्की तनसीबात और हसास इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक मालूमात मीडिया मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे थे। कार्रवाई 9 अक्टूबर को खुफिया इत्तला पर की गई। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची ने ईरानी डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। FBI के मुताबिक 3 लॉन्चों को कब्जे में लिया गया। 1,32,564 लीटर ईरानी डीजल बरामद, मालियत करोड़ों रुपए है। FBI के मुताबिक मेरीन यूनिट की जानिब से एक कार्रवाई में पेट्रोलियम मसनूआत की सबसे बड़ी बरामदगी है। रवा बरस सितंबर में भी और माड़ा और सोनम्यानी साहिल के करीब हज़ारों लीटर स्मगल शुदा ईरानी डीजल बरामद किया गया था। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने कराची मेरीन इन्फोर्समेंट यूनिट की शानदार कारकर्दगी को सराहा। FBI का कहना है कौमी महसूलात और मुआशी मफादात का मौसर तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान कस्टम्स की समुद्री निगरानी और नफाज की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बना दिया जाएगा। और जामिया कराची में दिलखराश वाक़या, सेकंड ईयर की तालिबा बस से गिर कर जा बहक। वाक़े के बाद तलबा और तालिबात सरापा एहतजाज है। एडमिन ब्लॉक के सामने मुजाहिरा किया। वाइस चांसलर खालिद इराकी ने तलबा की अलमनाक मौत की जिम्मेदारी कबूल करते हुए तलबा को पुरअमन रहने की तलकीन कर दी। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। कराची की मादरे इल्मी तलबा के खून से रंगे सोशल वर्क डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर की तलबा यूनिवर्सिटी की बस से गिर कर जाबाक। अनिका सईद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाबर न हो सकी। इतला मिलते ही सैकड़ों तलबा और तलबा जामिया कराची एडमिन ब्लॉक के सामने जमा। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारे, बस ड्राइवर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी एहतजाजी तलबा व तलबात के पास पहुंचे। कहा, हम इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। अफसोसनाक वाक़े पर दुख है। क्या वजूहात है नहीं है, पर वो जस्टिफाई नहीं करता है किसी भी मौत का, उसके ज़िम्मेदार हम हैं। ये कहना कि जी वाक़या हुआ, उसके बाद हमारी कोशिश थी कि उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करें,
मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो वहाँ गए, अभी भी वहाँ मौजूद हैं। तलबा तलबात की बड़ी तादाद ताज़ियत के लिए जाबाक तलबा के घर पहुंची। जामिया कराची में 55,000 तलबा तलबात के लिए महज 26 बसें हैं। तलबा तलबात बसों में लटक कर सफर करने पर मजबूर हैं। जामिया कराची की इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। हादसे ज़दा ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया है। कामरान सोहेल, न्यूज़ कराची। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें कि वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI की मरकज़ी और सूबाई क़यादत का अहम मुशावरती इजलास जारी है। इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, सूबाई सदर जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान, स्पीकर बाबर सलीम और मुसद्दिक अब्बासी भी इजलास में शरीक है। ज़राए का बताना है कि इजलास में सूबाई असम्बली का हंगामी इजलास बुलाने और अली अमीन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर मुशावरत हो रही है। इजलास में दीगर ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। असद कैसर का कहना है वज़ीर आला के इस्तीफे पर इस वक्त मुशावरत जारी है। वकला की टीम भी आई हुई है, सब तजावीज़ पेश की जा रही हैं। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो कानूनी तरीक़ेकार होगा वो मुकम्मल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI की मरकज़ी और सूबाई क़यादत का अहम मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, सूबाई सदर जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान, स्पीकर बाबर सलीम और मुसद्दिक अब्बासी भी इजलास में शरीक है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा नियो अब्दुल कयूम अफरीदी से। बताइएगा अब्दुल कयूम, इस इजलास की मजीद क्या कहानी है? देखिए जी, सूरत हाल जो है वो पेचीदा हो गई है। जो अली अमीन गंडापुर साहब है उन्होंने इस्तीफा भेजा है गवर्नर को। गवर्नर कह रहा है कि वो इस्तीफा जो है उन्हें मौसूल नहीं हुआ है, पता नहीं है कि कहाँ पर गायब है। तो इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के जो बड़े हैं वो बैठक लगाए हैं CM हाउस में, और जिसमें जो नामजद CM है सुहेल अफरीदी और सूबाई सदर जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान और स्पीकर बाबर सलीम, सवाती, मुसद्दिक अब्बासी और दीगर जो है वो MNAs MPAs वो शामिल है। और हंगामी इजलास बुलाया गया है और जो अली अमीन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर मशावरत हो रही है, और साथ ही साथ जो इजलास में दीगर ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। असद कैसर के मुताबिक वकला की टीम जो है वो भी आई हुई है और सब इस हवाले से अपनी तजावीज़ पेश करेगी, और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो भी कानूनी तरीक़ेकार होगा वो मुकम्मल किया जाएगा, असद कैसर का ये कहना है। साथ ही साथ कल 12 बजे जो है तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है असद कैसर और जो दीगर सूबाई सदर है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। तो जो नई अपडेट्स है फिलहाल वो यही है, और आगे मजीद जो सूरत हाल है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया अब्दुल कयूम इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, बात करें सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस कौंसिल का खसूसी वफ्द लाहौर पहुंच गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने एयरपोर्ट पर वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ से सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस कौंसिल के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अकीदत और एहतराम का इज़हार किया। सऊदी सफ़ीर की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए घरेलू सामान फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फराहमी की मंजूरी। खसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से अहम इजलास। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल करने का फैसला। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। कायमा कमेटियों से PTI के मुस्ताफ़ी अरकान की तादाद 9 हो गई। हाफिज़ फरहत अब्बास, शेख इम्तियाज़ महमूद, मलिक मुमताज़ अस्टर, हम्बल सना करीमी, राना शहबाज, तैयब राशिद संधू, अवैस विर्क, फ़रुख जावेद मून और अहमद रशीद भट्टी ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। अरकान असम्बली ने इस्तीफ़ा स्पीकर ऑफिस को भिजवा दिया।
आगे बढ़े और बात करें कि चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद दराई की सरबराही में वफ्द की कायम मुकाम चेयरमैन पैमरा सिकंदर राशिद समेत आला हुकाम से मुलाकात। मुल्क भर के केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मुश्किलात और उनके फौरी हल पर तफसीली बातचीत की गई है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द में चेयरमैन खालिद दराई के अलावा जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख नियाज और नायब सदर पंजाब मिर्ज़ा आतिफ शामिल थे। खालिद दराई ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल की निशानदही की। कहा, केबल ऑपरेटर्स भारतीय मवाद की नशरियात नहीं चाहते। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर इस मवाद को नशरियात की इजाज़त देना केबल ऑपरेटर्स का मौशी कत्ल है। सब्सक्रिप्शंस में फ़ी सारिफ 12 रुपये से 24 रुपये किया जाने वाला गैर मुनसिफाना इजाफा वापस लिया जाए। जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर्स ताहिर जावेद ने कहा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पैमरा के मुकामी अमले ने रिश्वत सतानी और करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। इस मसले से भी हमें फौरी निजात दिलवाई जाए। कायम मुकाम चेयरमैन पैमरा ने कहा, केबल ऑपरेटर्स के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। फ़लस्तीन वाले गजा अमन मुआहिदे से खुश हैं। कुछ लोग कहते हैं हम खुश नहीं। समझ नहीं आती जो असल स्टेक होल्डर है वो तो खुश है, मगर ये क्यों खुश नहीं हो रहे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के कौमी असम्बली में रिमार्क्स। गजा अमन मुआहिदे के बावजूद तनकीद और एहतजाज करने वालों पर स्पीकर कौमी असम्बली ने सवाल उठा दिया। ये नहीं समझ आती कि फ़लस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश नहीं हैं, जो स्टेक होल्डर है वो खुश हैं। इसका मैं कुछ करता हूं। हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंग बंदी मुआहिदे को उलमा कराम ने सराहा। वीडियो पैगाम में उलमा ने मुआहिदे को खुशाइंद करार दिया। कहा, अब दोनों फरीक मुआहिदे पर अमल दरामद करें। उलमा कराम ने मजहबी जमात की जानिब से किए जाने वाले मुजाहिरे की मजम्मत की है। जो 2 साल से सफाकियत और बर्बरियत और वहशत का सिलसिला शुरू था, बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्ले आम का, वो खत्म होने की तरफ जा रहा है। गजा की जंग बंदी के ऊपर और फलस्तीन का अमन मुआहिदे के ऊपर पूरी दुनिया इस टाइम खुशियां मना रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीनी अपना जो मुआहिदा हुआ है उस पर जश्न मना रहे हैं। मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। खुदा खुदा करके एक अमन मुआहिदा हुआ और फलस्तीनी अपनी रियासत में खुशियां मना रहे हैं। पूरी दुनिया इस फैसले का खैर मकदम कर रही है। पूरी उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर दौड़ गई है और बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमान इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ा करम किया है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो सख्त और मुश्किल तरीन दिन थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़त्म हो गए हैं। इसराइल और फ़लस्तीन का जो अमन मुआहिदा है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए खुश आइंद है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर इस खुशी की लहर दौड़ गई है। नाजरीन, ट्रंप मुंह देखते रह गए। अमन का नोबेल इनाम मारिया कोरेना के नाम। नोबेल कमेटी के मुताबिक मारिया कोरेना ने वेनेजुएला में जमहूरियत के हक में और आमरीत के खिलाफ अनथक जद्दोजहद की। मारिया कोरेना ने इंसाफ, आज़ादी और जमहूरियत के लिए गैर मामूली जुर्रत और इस्तेकामत का मुजाहिरा किया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियम पाकिस्तानियों की आवाज़।